Gorakssakar, I was reading a report which said, published by Assocham, which says that in the realty sector, projects are delayed by an average of about 33 months each project, and there are over 3,000 such projects across the country, or more than that actually. I'm not sure of the exact figures. But, this doesn't speak very well about the state of realty as well as all the sub-industries that are contributing to it. How does this factor out in terms of, the markets, in terms of all those companies that are supplying to the realty sector? I think clearly, as you rightly mentioned, the realty sector is definitely, surrounded by a lot of incomplete projects, and more importantly, delays happen because of working capital shortages, and obviously that has have a negative impact on the real estate sector. Now, coming to the vendors or the suppliers to the real estate sector, obviously, if the real estate sector is having a liquidity problem, it does have a multiplier effect on the vendors. And to that extent, I think sectors like construction, or typically sectors like electrical equipment, which actually supply to the real estate sector, for residential or commercial projects, we have been finding that for the last 12 to 15 months, there has been a considerable slowdown in activity. I think most of the companies who have already announced large projects are yet waiting for disbursements to happen. And I think if you talk about real estate companies specifically, I think companies which have got large leverage already on the balance sheets are going to face a tough problem, because we have been finding that there's a lot of unsold inventories in the system, and unless these inventories get cleared, I think new projects to start off the ground will take a long time. So my suggestion is, the real estate sector may see some sort of sluggishness at least for a couple of quarters before we see any positive impact of the rate cuts coming here, because already balance sheets are very heavily leveraged. और अपने दर्शकों को बता दें कि बाजार ने शानदार तेजी के साथ शुरुआत की है। करीबन 250 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स इस वक्त 27,000 के क्रूशियल लेवल 27,534 के आसपास कारोबार कर रहा है। 250 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, केन इंडिया, ये सभी बेहतरीन काउंटर्स जो आधे फीसद से करीबन 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं विप्रो, आइडिया, ये जो सब काउंटर्स जिन्होंने कल रिजल्ट पोस्ट किए थे, वहां पर कहीं ना कहीं दबाव नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर अगर रुपए की भी बात की जाए तो रुपए ने भी जो ओपनिंग दी है करीबन 32 पैसे से अपस्ट्रीम ओपनिंग देते हुए रुपया फिलहाल शुरुआती कारोबार जो है वो कर रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट्स करीबन 2.5% की बढ़त के साथ मिड कैप काउंटर्स, बैंक निफ्टी, सभी जो ये काउंटर्स हैं वो करीबन आधे फीसद से 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सीधे चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश, जबरदस्त शानदार तेजी के साथ 250 अंकों की बढ़त के साथ भारतीय बाजार ने ओपनिंग दी, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हम कह सकते हैं। क्या रहनी चाहिए रणनीति आज? नहीं, मुझे लग रहा है कि अचल ये गैप अप ओपनिंग तो डेफिनेटली हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस कल यूएस के मार्केट्स ने दिया था, आज एशियन मार्केट्स ने दिया है, और यूरोपियन मार्केट से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिले हैं कि लिक्विडिटी कंटिन्यू होगी, मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियरली चाइना का मार्केट में क्लियरली जो मंदी का माहौल है वहां पे थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना जरूरी होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आज यूरोपियन मार्केट्स क्लियरली अगर थोड़े बहुत वीक ओपन होते हैं तो शायद सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत बिकवाली देख सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स का जिस प्रकार का गैप अप ओपनिंग हो गया है, मेरे ख्याल से किसी को मौका नहीं दिया है कि लोअर लेवल्स पे कोई खरीदे। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अविनाश, अगर बात की जाए तो आईटी कंपनियों के जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने निराश किया है। विप्रो से एक उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं। करीबन 1% से ज्यादा स्टॉक फिलहाल गिरावट के साथ, दबाव के साथ चार्ट को लीड करता हुआ कारोबार कर रहा है। काफी मुनाफा वसूली साफ तौर पर नजर आ रही है विप्रो के काउंटर में। सभी आईटी स्टॉक्स को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए आगे आने वाले समय के लिए, जहां पर आज भले ही 32 पैसे की अपस्ट्रीम रुपया दिखा रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि आईटी कंपनीज में जिस प्रकार के नतीजे Q2 के लिए आ गए काफी डिसअपॉइंटिंग है। अगर हम इन्फोसिस, टीसीएस या HCL टेक के नतीजे देखें, और कल जो विप्रो के जो नतीजे आ गए, इसमें एक क्लियर डिसअपॉइंटमेंट उनके गाइडेंस को लेके है। इस कंपनी ने सबसे लोएस्ट गाइडेंस दिया है, जो उन्होंने 0.5 to 3% का बोला है, जो शायद मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इसी के लिए शायद आज स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट
क्लाइमेट रहेगा आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि क्रॉस करेंसी के कारण अभी भी मार्जिन में दबाव रह सकता है। Right. So, Mr. Jindal,